So very well, guys. What we are going to do is for now, let's if जिन लोगों का हो गया है installation and all, you people can code along with me. जिन लोगों का नहीं हुआ है, please follow just follow my screen for now. And once this session is over, we will connect one on one. ठीक है? So that let's not keep everybody waiting. I'm running the so far जो आप देख चुके हैं वो सब मैं जल्दी से रन कर दे रहा हूँ. ऑल सच थिंग्स टेकन केयर ऑफ. ये सब चीजें आप देख चुके हैं ऑलरेडी, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है. We cleaned the data, we cleaned outliers, we converted categorically into dummy variables, then we split the available data into two parts. One is train, one is validation. We have done it via random sampling, and we know why we have done that. Before random sampling, we have set a seed. So even that is pretty much clear. I don't think यहाँ तक कोई confusion है किसी. Then we started model by backward selection, backward reduction. We started off with all the possible variables. So target variable price tilde dot. We checked the summary. It is a pretty decent model. In fact, fantastic model. Very good R squared. Then we do some step reduction in both the directions. We know what is that now. So when that is taken care of, and we see after step reduction, many unnecessary variables are already gone. Then we came out to something called multicollinearity. Now those variables which are left, within those variables, I am very much concerned about those variables. I am not concerned about the variables whom this model is showing as insignificant. I am more worried about these variables, which variables I can't see yet, but I am worried about those variables which are multicollinear. In abstract, those variables which are feigning importance. Actually, they are not important. Actually, the same information is available to me via other variables. This variable is unnecessarily sitting here. Right? I hope यहाँ तक sorted है सब कुछ. That's where car package comes in. Now I want to see which variable are multicollinear with the other variables. So let's check VIF, the variance inflation factor, and I see some variables with okay, we can sort these also. I sort this VIF so that I get to know. And what do I see? Just हाँ सॉर्ट कर दिया है तो लास्ट में मैं सबसे हाई दिखेंगे. अगर मैं समरी देखूं तो यू कैन सी X, it is showing highly important. Y, it is showing highly important. राइट देखने में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. मेरा मॉडल कह रहा है कि इनका प्राइस से बिल्कुल बहुत अच्छा रिलेशन है. बट इज इट रियली सो? क्या यही वो वेरिएबल्स हैं, या ऐसा तो नहीं कि ये किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं? एक्चुअली उस वेरिएबल की वजह से प्राइस प्रेडिक्ट होता है, एंड दीज आर जस्ट सेटिंग इन बिटवीन. VIF देखने पे मेरे को वही पता चल रहा है. देयर VIF, why VIF, it is saying it is highest, 400 something. X is also of similar order, 400 something. So almost equal VIF, both of these are having. Let's try removing.
बात है, यही तो बात हुई थी हमारी। अरे बताओ, कल यही तो बात छोड़ी थी। अगर ये मल्टीकोलिनियर है, यानी इसके जाने से भी मेरे को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तो इसका मतलब आर स्क्वायर पे कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए इसके जाने से। यही मतलब हुआ कुल मिला के। कल बात किए थे ये, बोलो यस और नो। यार, इफ देयर इज समथिंग सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, मेरे डेटा में ये ए कॉलम भी है, ये बी कॉलम भी है और सी कॉलम भी है। मैं कह रहा हूँ, जब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सी को हटा भी दूं तो मेरे मॉडल को तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, देख लेगा वो रिलेशन अपने आप। मैथमेटिक्स तो आता है उसको, मॉडल को। देयर इज इंट्रिकेट मैथ्स बिहाइंड इट, वी हैव सीन दैट, setting up an imaginary geometry and setting up a linear equation there of multi dimensions। तो वो तो देख लेगा अपने आप मॉडल। इसके जाने से कोई, इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलो हटा के देखते हैं। हमने अभी क्या देखा, हाईएस्ट वीआईएफ आई है एक्स और वाई की। वाई की हाईएस्ट है। एक्स की भी काफ़ी हाई है, बस थोड़ी सी कम है वाई से। यू नो वेयर वी आर गोइंग विद दिस, डू यू रियलाइज? रिमेंबर कोर फंक्शन दिखाया था मैंने आप लोगों को, रिमेंबर दैट राइट? अगर मैं एक्स और वाई में कोरिलेशन चेक करने लगूं, ओ वाह, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल में कोरिलेशन कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट वन। इट मीन्स लगभग बिल्कुल सेम है। कोरिलेशन क्या दिखाता है कि ये वेरिएबल बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो ये वाला वेरिएबल भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये ड्रॉप होता जा रहा है तो ये भी ड्रॉप होते जाएगा। सो दैट्स पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, अगेन दोनों तरह का हो सकता है। नेगेटिव मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बट नेगेटिव, यानी एक्स वेरिएबल जैसे इंक्रीज होता जाता है, वाई वेरिएबल डिक्रीज होता जाता है। सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो वही कोरिलेशन देखा हमने, तो पता चल गया दैट एक्स एंड वाई आर हाईली कोरिलेटेड, दैट इज वाई वीआईएफ उनकी काफी हाई आई है। लेकिन अब मैं क्या मानूं इसे, क्या समझूं? एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई और वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। वो कैसे पता चलेगा? अब वो पता करने का और कोई तरीका नहीं है। कोरिलेशन हाई, दोनों की वीआईएफ हाई। अरे सही बात है, ये भी तो होगा। अगर मैं कह रहा हूँ इसका इससे बहुत हाई कोरिलेशन है, तो इसका भी तो इससे हाई कोरिलेशन हो गया। अब दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा? अब वो देखना पड़ेगा हटा के। बाकी लोग कर रहे हैं कोड मेरे साथ, अदर्स, जिनके कार पैकेज में दिक्कत नहीं है, जिनको दे आर एबल टू डू, प्लीज जस्ट गिव मी a nod so that I can go ahead with some tips and tricks। जिन लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया था कार पैकेज का, दे कैन कोड विद मी। हाउ कम इज दिस हैपनिंग विद ऑल ऑफ यू? ठीक है, देखता हूँ एक बार। ठीक है, तो मॉडल 3 बनाते हैं और उसमें से एक बार एक्स को हटा के देखेंगे, एक बार वाई को हटा के देखेंगे। हाँ जी, कैसे बनाऊँ मॉडल 3? मॉडल 3 एल एम प्राइस टिल्डा, हाँ क्या लिखूँ, क्या लिखूँ? ये रहे सारे वेरिएबल जो स्टेप फंक्शन के बाद लिखे थे। मुझे ये सारे लिखने हैं, बस इनमें से
एक्स नहीं लिखना, एक बार एक्स हटा के देखूंगा, एक बार वाई लिख के हटा के देखूंगा, बाकी तो सारे लिखने ही हैं। कहाँ चलाऊं? लिखे हैं सारे वेरिएबल के नाम अभी, आज दोपहर तक, आज के लेक्चर में यही काम करते हैं। नॉट एक्चुअली। रिमेंबर, जब हम किसी मॉडल की समरी देखते हैं, कौन से मॉडल की देख रहे हैं हम ये? समरी मॉडल 2 की। जब हम किसी मॉडल की समरी देखते हैं तो सबसे ऊपर वो कॉल बताता है। कॉल यानी जिस कॉम्बिनेशन से ये मॉडल बना है। तो ये क्यों बताता है? ये इसीलिए बताता है ताकि आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकें। मॉडल 2 की समरी, आपने कॉल कॉपी कर लिया एंड आपने कॉल पेस्ट कर दिया। क्या करना है? हटा दो जो हटाना है, पता चल जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया, सेवी, स्मार्ट। मॉडल 2 की एडजस्टेड आर स्क्वायर थी 0.929। तो लेट्स सी, हमने देखा था हाई वी आई एफ एक को एक्स का ज़्यादा आता है, तो हटा के देख लेते हैं। एक्स को डिलीट कर दिया, एक्स को डिलीट कर दिया एंड मॉडल 3 की समरी चेक करें एक्स को हटाने के बाद। एंड व्हाट डू यू सी? हाँ, तुम्हें तो मैं भेज दूंगा, लेकिन कर लो ना कॉपी पेस्ट यहाँ से। मॉडल 2 की समरी में कॉल कॉपी करनी है ऊपर जाके, बिकॉज हर बार मैं थोड़ी भेजूंगा। ये लो, फॉर नाउ आई एम सेंडिंग यू, हियर इट इज। ओके, तो व्हाट डिड वी ट्राई? हमने देखा था वी आई एफ बहुत हाई था। दो कंटेंडर सामने हैं जिनका सेम सा ही था, लगभग 400 समथिंग, दोनों का बराबर सा वी आई एफ था। एक्स हटा के देखा और हमने क्या देखा? आर स्क्वायर पे क्या इम्पैक्ट आया है जी? क्या इम्पैक्ट आया है? पहले आर स्क्वायर था 0.929, अभी आर स्क्वायर कितना है? 0.9284। स्लाइट ड्रॉप। सही बात है, ऐसा ही हुआ है। ओके, अब की बार कैसा करते हैं, एक बारी वाई को भी हटा के देखते हैं। तो एक्स को वापस ले आए, वाई को हटा दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, पता चल जाएगा। वी आई एफ तो दोनों का ही लगभग सेम था, यानी दोनों में कोरिलेशन तो बहुत हाई था, वो तो हम देख चुके तरह तरह से। तो मल्टी कोलिनियर तो हैं दोनों, बहुत ज़्यादा। बाकी वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से दे रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन। एंड ओके, वाई हटाने से व्हाट डू यू सी? हाँ जी, एक्स हटाया तो आर स्क्वायर कितना आया था? इट वॉज 0.9284। वाई हटाया तो आर स्क्वायर कितना हुआ? जितना भी हुआ, 9289। हाँ जी, कौन सा हटाना बेटर रहेगा? जब दोनों थे तो आर स्क्वायर थी 0.929। तो अब मैं, हाँ,
जितना ज़्यादा इसको मैं मेंटेन कर पाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें ड्रॉप कम से कम आए। वही वेरिएबल तो फालतू हुआ। आर स्क्वायर्ड अगर ड्रॉप नहीं हो रही है या ड्रॉप हो भी रही है तो नेग्लिजिबली ड्रॉप हो रही है, ऐसे वेरिएबल को हटाने से हमारे मॉडल की पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें मालूम है। तो हमने दोनों ट्राई कर लिए, हालाँकि दोनों को ही हटाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हटाने को कोई सा भी हटा सकते हैं, दोनों से ही नेग्लिजिबल ड्रॉप आ रहा है। पर चलो फिर भी हमने कंपेयर कर लिया, तो लेट्स रिमूव वाई। ठीक है, तो व्हेन वी रिमूव वाई, मॉडल 3 इज द फाइनल मॉडल। समरी में देखा आर स्क्वायर्ड आता है 0.929 ही है ऑलमोस्ट, कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा। और अब फिर से देखें वीआईएफ का क्या हालचाल है। तो क्या हालचाल है? देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, समथिंग टू नोटिस, वाई के जाने से एक्स की अपने आप कम हो गई। सी दैट, पहले दोनों की 400 दिखा रहा था, राइट? तो इट वाज बिकॉज एक्स और वाई के बीच हाई कोरिलेशन था, दोनों में कोलिनियरिटी था। वाई चला गया तो एक्स की अपने आप थोड़ी सी कम दिख रही है, थोड़ी सी नहीं मतलब काफी कम दिख रही है। यहाँ तक ठीक है, चलूँ आगे इससे। यार या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, तो मेरे को समझ आएगा, या तो दोबारा कुछ बात करनी है इसके बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है, तो अगली इटरेशन पे चलते हैं। ओके। ओके, वन मोर थिंग टू पे अटेंशन टू इज, जब आप लोग देखेंगे अपने आप कर रहे होंगे ना, यू विल सी, एंड इफ यू रियलाइज यू विल सी इन दिस ऑल्सो। अगर मैं पहले इटरेशन में दिखाऊं, यू सी दिस, कट प्रीमियम की पी वैल्यू अभी कुछ और दिखा रहा है वाई के जाने के बाद। जब वाई था तो कुछ और दिखा रहा था, ओनली इफ यू पेड अटेंशन। चलो अभी देख लो, इस समय कट प्रीमियम की पी वैल्यू कितनी दिखा रहा है ये, जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस। अगर मैं मॉडल 2 में दिखाऊं इसकी पी वैल्यू, जब सारे वेरिएबल थे, वाई वेरिएबल था, कट प्रीमियम कहाँ गया, ये रहा। देख रहे हो पी वैल्यू उसकी कितनी थी। व्हाट इज हैपनिंग इज सेम विल हैपन विद ऑल द अदर वेरिएबल्स। अगर आप एक भी वेरिएबल हटाएंगे तो बाकी सबकी पी वैल्यू चेंज हो सकती है। सबकी नहीं होगी तो बहुत सारों की जरूर होगी, डेफिनेटली मैनी ऑफ देम विल चेंज देयर पी वैल्यू। ये पी वैल्यू इतनी ज़्यादा चेंज भी हो सकती है कि पहले जो ब्लैंक दिख रहा था वो अब स्टार हो चुका है, और वाइस वर्सा, पहले जो स्टार दिख रहा था वो अब ब्लैंक हो चुका है। समझ रहे हो? इस वेरिएबल के रहने से ऐसा हो सकता है कि पहले कोई इंपॉर्टेंट था लेकिन दिख नहीं रहा था, अब जब चला गया तो दिखने लगा। एंड मे बी वाइस वर्सा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके रहने से पहले कोई इंपॉर्टेंट दिख रहा था अननेसेसरी, लेकिन इसके जाते ही वो भी दिखने लगा कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। Remember, I told you that this regression modeling is iterative. There will be several iterations, and we will remove one variable at a time. Perhaps I discussed that. Somebody was asking me that how can we remove all these unimportant variables in one go? So, although we can remove, but we will not. Clarity makes sense.
Okay, okay, thank you people, thank you. It's good to see you people responding, so that हाँ मेरे को लगता है कि हाँ जहाँ भी हो तुम हो। मैं लैपटॉप से बातें नहीं कर रहा हूँ। ओके, वेरी फाइन, नाउ सॉर्टेड। तो हमने पहले इटरेशन में y वेरिएबल हटाया, अब मैं देख रहा हूँ ओके VIF तो अभी भी हाई है। नाउ हाउ मच VIF इज, यू नो, मैं कह रहा हूँ VIF इज टू हाई। नाउ हाउ हाई इज टू हाई? कोई स्टैंडर्ड है, कोई स्केल है? तो यस इट इज देयर। यूजुअली we will try to bring VIF. Ideally VIF should be between 1 and 2. It means the variable is perfectly independent. जिस वेरिएबल की VIF 1 और 2 के बीच होती है, it means this variable is perfectly independent of other variables. It has no correlation at all. अब प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाता है। थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी सूनर और लेटर, कुछ ना कुछ। यू हैव 10,000 रोज ऑफ डेटा, तो हो सकता है उसमें 1000 रोज में ऐसा डेटा हो विच इज कोलिनियर, तो इट मे बी पॉसिबल। तो परफेक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं। So what is usual standard is that VIF up to order of 5, that is permissible. ठीक है, 5 के आसपास तक की चल जाती है, 5 6 इतना चलता है। If VIF is greater than 10, then it is definitely a concern. Sure 100% आपको VIF ट्रीट करना पड़ेगा। इवन इफ अगर VIF किसी वेरिएबल की इतनी ज़्यादा है और आपको उसे वेरिएबल को ड्रॉप करने से आपके R स्क्वायर्ड में ड्रॉप आ जाता है, इवन देन यू विल हैव टू ट्रीट इट। मल्टीकोलिनियरिटी इज दैट सीरियस इशू, तो वो भी करेंगे उस समय पे। VIF is showing you Siddharth, the multicollinearity part. Just give me a moment. VIF is telling you multicollinearity, Siddharth, that अच्छा दिखाता हूँ, चलो एक बार with one example. See, there are 4 variables A, B, C, D, and I am saying that C and D have very high correlation, right? तो इनका VIF कुछ होना चाहिए, कुछ दिखेगा। कोरिलेशन से मैंने देखा कि कोरिलेशन आ गया सपोज 0.9, so it means it is high correlation. So VIF has taken into account that this D is correlated with C, not dependent. Let's not say dependent anywhere. Then what does VIF takes into account is that D, this is also collinear with B in some way. समझ पा रहे हो? Not audible. Am I not audible? Can somebody confirm? Okay, very fine. Thanks. Varun, maybe please tweak at your end. Okay, fine. ठीक है जी। तो इसका डी का कोरिलेशन इससे भी हाई आया। अगर मैं कोर फंक्शन से इसका इसका चेक करूं तो वो भी कोरिलेशन हाई आया। लेकिन कोरिलेशन फंक्शन मेरे को ऐसे नहीं बता रहा कि इस डी का टोटली इसका कोरिलेशन कितना कितना आ रहा है। VIF इज टेकन इनटू अकाउंट दिस आल्सो, कि बाकी कितने वेरिएबल से इसका कोरिलेशन हाई। तो इफ इट इज डिपेंडिंग ऑन इट इज नॉट डिपेंडेंट, इफ इट इज कोरिलेटेड विद वेरियस वेरिएबल्स, उसी को हम मल्टीकोलिनियरिटी बोल रहे हैं। तो इसका VIF हाई 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 और हाई दिखता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल
अभी बिल्कुल लगे, हाथ के हाथ दिखाऊं आप लोगों को? तो दिस जो आप बिल्कुल अभी अभी देख रहे हो, हमने अभी अभी क्या देखा कि एक्स और वाई का कोरिलेशन बहुत हाई था, अब तो वाई चला गया, एक्स का पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत है। तो इसका मतलब अभी भी ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन पे एक्स एक्स का कोरिलेशन हाई है। सिंपल, ये मतलब हुआ इस बात का। पता नहीं कौन से हैं, शायद इससे हो शायद इससे हो, लेकिन एक्स का कोरिलेशन अभी भी बहुत हाई है। ये मीन्स इट इज स्टिल इट इज डिपेंडिंग ऑन सम अदर वेरिएबल्स। ठीक, ठीक है जी, करेक्ट यहाँ तक। सिद्धार्थ, कुछ क्लैरिटी? चलो आगे। ओके, अब काम आसान है, अब तो हमें तरीका आ गया। अब किसकी भी आई एफ आई दिख रही है मेरे को? ओके, एक्स की बहुत हाई है, 200 समथिंग। वैसे जी की देखें तो जी की भी काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 200। तो अब ये दो बचे जिनसे मेरे को, हाँ हाईएस्ट तो एक्स है खैर क्लियरली, बट लगभग उसी के ऑर्डर का जी भी है, तो आई शुड नॉट इग्नोर जी ऑल्सो। लेट्स ट्राई इट आउट, जस्ट कॉपी पेस्ट, नाउ इट बिकम्स माई मॉडल 4। लेट्स इटरेट। मॉडल 4 में हाँ जी क्या कर लूँ, एक बार एक्स हटा के देखते हैं। इन मॉडल 4 वाई तो जा चुका, मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक्स का, अब की बार इन दिस इटरेशन हम एक्स हटा के देख रहे हैं, एंड व्हाट हैपेंस, आर स्क्वायर्ड। हाँ जी, बिफोर दिस मॉडल कितनी थी? इतनी थी। आफ्टर कितनी है? इतनी है। ओके, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ड्रॉप है एक्स के जाने से। जी को हटा के चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। जी की भी आसपास ही है, 200 के आसपास ही है, कम तो ये भी नहीं लग रहा। तो वो एक्स को वापस ले आए, अब की बार जी को हटा के देख। हाँ जी, बिफोर इतनी थी, आफ्टर इतनी है। जी के जाने से, एक्स के जाने से आफ्टर में इतनी हो गई थी। बताओ कौन सा हटाएं, कौन सा रख लें? जिससे आर स्क्वायर में ड्रॉप कम आ रहा है वो रखूंगा। कौन सा रख लूं? अरे टपकाओ जल्दी जल्दी रस। रेस्पॉन्ड क्विकली, क्या कंफ्यूजन है? यस, ऑफ कोर्स, एक्स को हटाने से आर स्क्वायर ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, जी को हटाने से ऑलमोस्ट जितनी थी उतनी है। 9289, 9288, फर्क ही क्या पड़ रहा है? तो लेट्स रिमूव जी। दिस बिकम्स माय मॉडल 4। मैं देख रहा हूँ आर स्क्वायर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल कम होते जा रहे हैं। लेट्स चेक वी आई एफ, एंड व्हाट इज द हाईएस्ट वी आई एफ दिस टाइम? वाओ, यू सी, जी के जाने से एक्स की अपने आप ड्रॉप हो गई, राइट? लेकिन हाँ 10 से अभी भी काफ़ी हाई है। जो मेरा पर्पस था, मेरे को क्या लाना है, आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम इनटू बिटवीन 1 एंड 2। इफ नॉट 1 एंड 2, आई विल ट्राई टू एटलीस्ट ब्रिंग देम अराउंड 5। और जब तक 10 से ज़्यादा है तब तक तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा। तो आई होप यू आर नोटिसिंग दिस, ये सारे जितने भी आई है अभी 400 500 ऐसी दिख रही थी, 400 200 300 आते जा रहे हैं धीरे धीरे लेवल में, जैसे जैसे हाई वी आई एफ वाले जा रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं हम कि हाई वी आई एफ वालों के जाने से मॉडल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी वाकई मॉडल के पास इंफॉर्मेशन अभी भी है, वो प्राइस को प्रेडिक्ट अभी भी कर सकता है मेरा मॉडल, सेम एक्यूरेसी से।
ओके, इटरेशन नंबर 5, copy paste. This time model is 5 5 5। जो जा चुके अब तक जा चुके हैं, अब देखना है मेरे को। अच्छा हाँ जी, कौन कौन है? x is 28, ओके, स्टिल हाईएस्ट, सब कुछ होने के बाद भी हाईएस्ट है। कैरेट इज 27.93, ऑलमोस्ट हाईएस्ट। हाँ 27.9, 28 ही हो गया। ये भी 28, ये भी 28, दोनों लगभग बराबर हैं। इट मीन्स ऐसा लग तो रहा है कि इन दोनों का कोरिलेशन बहुत हाई है। हटा के देखते हैं। अभी समझ आ रहा है वैसे आप लोगों को कि x का कोरिलेशन मेरे को 400 क्यों दिखा था पहले? वही जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। फॉर नाउ आई कैन सी दैट x इज कोरिलेटेड विद कैरेट, इसीलिए तो इन दोनों का हाई है। कैरेट एंड x आर इंटर रिलेटेड, कुछ ना कुछ कोरिलेशन है दोनों में। दैट्स व्हाई दे बोथ हैव हाई VIF। बट x का z के साथ भी कोरिलेशन था, तभी तो 200 दिखा था इससे पहले। x का y के साथ भी कोरिलेशन था, इसीलिए 400 दिखा था सबसे पहले। तो आई होप सिद्धार्थ नाउ यू आर फॉलोइंग। क्यों हम एक एक करके कोरिलेशन नहीं देखते? क्यों मैं सीधे VIF की बात कर रहा हूँ? व्हाट इज VIF इवेंचुअली? ठीक है, तो इवेंचुअली VIF विल शो मी कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशंस। इसके जितने भी कोरिलेशन होंगे बाकी वेरिएबल से, वो कलेक्टिव इम्पैक्ट दिखाएगा। ओके, तो ओके, नाउ आई कैन रिमूव x और आई कैन रिमूव कैरेट। आई हैव टू चॉइसेस। चलो x हटा के देखते हैं। वी रिमूव x एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द मॉडल। व्हाट हैपेंस टू द मॉडल? देखो देखो देखो, इससे पहले एडजस्टेड आर स्क्वायर इतनी थी। Before it was this. After it was how much? How much? After it is this. x के जाने से इतना इम्पैक्ट आया। कितना आया? ऑलमोस्ट 1%। ओके, अगेन नॉट मच टू वरी अबाउट। ठीक बात है, पर मेरे को ये भी पता है कि इतना ही VIF वाला कैरेट भी है, तो देख लेते हैं, शायद कैरेट से कुछ बात बन जाए। तो लेट्स ऐड x बैक एंड रिमूव कैरेट दिस टाइम। Model 5 this time with x and without caret, and let's check summary। हाँ जी, आर स्क्वायर का क्या हो गया? कैरेट के जाने से आर स्क्वायर पे क्या इम्पैक्ट आता है? I got this right. Yes. Now it is a significant drop. It is a sudden drop, almost of 8-9%. Now this is fatal. This is uh, you know detrimental to your model. It means VIF कम करने के चक्कर में आपने रियली इंपॉर्टेंट वेरिएबल हटा दिया है। रिमेंबर यस्टरडेज एग्जांपल, कार लेंथ is correlated with parking area। इसकी भी VIF हाई दिख रही है, इसकी भी VIF हाई दिख रही है। अब एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये था कार लेंथ, तो पार्किंग एरिया हटाते तो मॉडल पे फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या किया? तुमने कार लेंथ ही हटा दिया कि हम पार्किंग एरिया रख लेते हैं, कार लेंथ हटा देते हैं। गेटिंग द जिस्ट? एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट था वो हट गया मुझसे, अब कोरिलेटेड तो था। तो लेट्स नॉट डू दैट।
इसका मतलब क्या हो रहा है, गलत हो गया। एक रियली इंपॉर्टेंट वेरिएबल मैंने हटा दिया जिससे मॉडल की प्रेडिक्टिंग पावर पे अचानक से इम्पैक्ट आता है। सो लेट्स नॉट डू दिस। हाँ जी, तो फिर बेटर क्या रहेगा, इसका मतलब एक्स हटाना ही ठीक है। एक्स हटाने से मेरे मॉडल की आर स्क्वायर कितनी हो जाती है, 0.919। रिमेंबर मैंने हटाने कहाँ से शुरू किए थे, 0.929 से। कितने वेरिएबल हटा चुका हूँ, बहुत सारे हटा दिए मैंने एक एक करके। और मेरे मॉडल के पावर पे मैं देख रहा हूँ कोई खास फर्क पड़ा नहीं है आर स्क्वायर पे। मेरे मॉडल का फिट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज इट वाज बिफोर। वेरिएबल बहुत सारे कम हो गए। तो यानी एक तो मल्टी कोलिनियरिटी चला गया, एंड इन अदर वे, इन अनदर वे इफ आई से इट, ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम कम होता जा रहा है मेरे मॉडल का। ठीक है जी, लेट्स टेक अनदर व्यू एट VIS एंड ओके, व्हाट डू यू से। बढ़िया, all variables are under 5, that's ideal case scenario। बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक सॉर्टेड, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन। वेरी फाइन, इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन, आगे की बात करते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी इज सेटल्ड, VIF का प्रॉब्लम ठीक हो गया है, नाउ ऑल आर अंडर 5। अब बात करते हैं वापस सिग्निफिकेंस की, क्योंकि अब नाउ आई एम श्योर दैट दोज वेरिएबल्स विच कुड हैव feigned importance, which could have tried to deceive me by looking like important variable, all those are taken care of. Now they have gone. Who are left? Who are left now? Only those which are really important or really not important. So I see anything in particular? Well, actually, I don't see anyone insignificant now. All seem to be starred. All are starred. In other words, all are significant variables. What if there were insignificant variables? For example, if there was this was without a star, or this was just with a dot, or maybe blank, कुल मिला के स्टार नहीं आया, कोई ऐसा वेरिएबल दिखा मेरे को यहाँ पर जिसमें स्टार नहीं आया, व्हाट विल यू डू? ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे, बट आई जस्ट वांट यू टू टेल मी व्हाट विल यू डू इफ देयर इज अ वेरिएबल जिसके सामने कोई स्टार नहीं है। सपोज दिस वन, इसके सामने सपोज आपने देखा कि कोई स्टार नहीं है, या तो ब्लैंक है या डॉट है। व्हाट व्हाट कुड बी योर अप्रोच? हाँ, वेरिएबल हटाना अभी आपने देख लिया, आप कॉपी पेस्ट करके लाओगे a new iteration, and in next model, yes, you will remove it. You remove it and keep an eye on r squared. R squared should not drop drastically. नेटिग्रिटी थोड़ा बहुत आर स्क्वायर जाता है वो चलेगा, मेरे को ओवर फिटिंग कम हो रहा है ना, तो आर स्क्वायर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। ट्रेनिंग मॉडल पे, ट्रेनिंग डेटा पे उसका फिट थोड़ा बहुत अगर डैमेज होता था वो चलेगा, लेकिन जब मैं अनसीन डेटा पे टेस्ट करूं वहां पर ओवर फिटिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताओ जरा, आपको दिखा ये वेरिएबल यहाँ पर भी ब्लैंक है, आपको दिखा ये वेरिएबल ये वाला भी ब्लैंक है,
और आपको दिखा ये वेरिएबल, इसके सामने डॉट है, डॉट blank blank, and you know that you cannot remove multiple variables in single iteration. You have to remove one by one. अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसे हटाओगे? शुभम कुछ कह रहा है, आप बाकी लोग देख रहे हो उसको? समझ आ रही हो बात उसकी? वो कह रहा है वीआईएफ जिसकी हाई होगी उसे हटा देंगे। सी, अगर वीआईएफ का इशू अभी होता तो मैं यहाँ की तो बात ही नहीं करता, अभी तक मैंने की थी क्या? जब तक वीआईएफ हाई आ रहा था, यहाँ स्टार आए या ना आए, मैं हूँ, मेरे आई एम नॉट कंसर्न, पहले मैं वीआईएफ की ही बात करूंगा सबसे। बट नाउ when VIF is controlled, all VIFs are, I can see that all are under 5. So I am very much, uh, convinced about VIF part. उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब p वैल्यू देखा, मैंने देखा यहाँ पर डॉट आया है, यहाँ पर ब्लैंक आया है, यहाँ पर ब्लैंक आया, अब किसे हटाऊँ? तो now not worrying about VIF, now I have to worry about p वैल्यू। जब ऐसा हो जाए तो you will check this वैल्यू, ये किसकी हाईएस्ट है। हाँ जी, फंडा क्या था? ये वैल्यू जितनी कम होती है उतने ज़्यादा स्टार आते हैं, यही फंडा था। 0 से 0.1% के बीच में होगी तो ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। 0.1 to 1%, 2 स्टार, स्टिल इंपॉर्टेंट। 1% to 5%, ओके, सिंगल स्टार, स्टिल सिग्निफिकेंट। आफ्टर 5% हम कह रहे हैं कि 5% से ज़्यादा हो पी वैल्यू तो हम बोल रहे हैं नाउ दे बिकम इनसिग्निफिकेंट। लेकिन अब ऐसे भी 3 दिख रहे हैं मेरे को, तो किसे मान, तो सबसे ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट जो होगा उसी को तो हटाएंगे। फिर ये देखते हैं कि 5% से ज़्यादा तो है, 5% से कितनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, तो जिसकी पी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो जाएगा, राइट। एंड यू कीप ऑन इटरेटिंग till the time that your r squared is almost retained, it is not dropping significantly, and you have removed all unnecessary variables। ठीक है जी, गुड इनफ। Shubham, there is no, it will depend on data size basically. It will vary with that also, but by thumb rules, it cannot be more than 2% if you want a general thumb rule। एक वेरिएबल के जाने से अगर 1%, आधा परसेंट, 2% तक भी हो रहा है तो ठीक है, समझ आता है। बट इफ इट इज हैपनिंग लाइक 8%, 10%, 12%, नो, इट मीन्स नाउ इट हैज बिकम यू हैव रिमूव्ड रियली इंपॉर्टेंट वेरिएबल बाय मिस्टेक। ठीक है, ऐसा ड्रॉप नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, साउंड्स गुड टू एवरीबॉडी। नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग। अभी तक जो भी कोड मैंने आपको रन करके दिखाया, दिस ऑल आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू। आई वांट यू टू रन इट वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। कोड आप पूरा समझ चुके हो, मोर और लेस आपके पास है भी सारा, बट स्टिल आई वांट इट टू बी कंपाइल्ड इन वन सिंगल फाइल। तो मैं आप लोगों को एक फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है? विल दैट डू एनी गुड, और आई एम डूइंग समथिंग फ्यूटाइल? प्लीज अप्राइज मी ऑन दैट ऑल्सो।
Shubham, I'm not very clear what you want to convey. By removing multiple variables one by one, if you are removing one by one, how come multiple variables? If you are removing multiple variables, how come one by one? Uh, couldn't make any meaning of this. अच्छा, that could happen, शुभम. आपने एक वेरिएबल हटाया, पता लगा 1% ड्रॉप हो गया, फिर दूसरा हटाया, फिर 1% ड्रॉप हो गया, ऐसे करते करते आपने पता लगा 10 वेरिएबल हटाए, तो टोटल ड्रॉप 10% हो गया. हाँ, हो सकता है. And anybody you recall who is not attending regularly? Somebody from your group, somebody from your team. Mostly I see everybody on time, except for Shivang. Shivang, you are here. Just check it out, guys. The code is with you. The data is inbuilt in ggplot2, and those who have faced problem of car package. Okay, try one thing. I am giving you a link. It has various threads for various errors of car package. Here it is. I can feel your anxiety, Shubham and Prasoon. I will come on to these things. पहले रन कर लो एक बार, देख लो आराम से. ठीक है. जिन लोगों से कार पैकेज नहीं हो रहा था, ड्रॉप द लिंक, प्लीज चेक इट. इट इज अ लिंक फॉर वेरियस एरर्स which are thrown by usually thrown by car package. See, again, it is open source package, so it can glitch many times, and these things happen with free things. You know, when something comes free, uh, yeah, you got the point, I believe. Fair. The code, entire code is with you in one single spot, so you can just have to run it. इसके बाद हम वैलिडेशन देखेंगे कि वैलिडेट कैसा कराएंगे मॉडल को. Meanwhile, you can run the code. Meanwhile, I'll just put it up for a
and please just tell me after how much time should I resume, so that you have ample time to run the code, and maybe yes, just have some breathing time also. Anybody? Anybody? Okay, I was thinking. Okay, yes, I was thinking of 15. Yes, 5 extra minutes today. Guys, please ping me quickly those who are here. Okay. Ran the code. Are you done with the code? And anything in particular? Any problem? Anything you find confusing, intriguing? Nothing. Sounds like very ideal case. Okay. So in model 5, finally you see all our VIF control. If you see summary, we see that every variable is now at least minimum significance every variable possesses. R squared, okay, decent enough. So I think we are good to go for predictions now, right? Shall we? कैसा मिला है मेरे को इक्वेशन? Finally we have VIF controlled all significant variables. ऐसा मॉडल मेरे को मिल गया है, तो seems like my final model. Yes, let's go on to validation of this model, that how good this model is performing. Remember, we talked about this. I'm not going directly to give predictions on real-time data. I want to validate this first. For the very purpose, we created a data set val, the val data frame, which contains, so val data is randomly taken from available data. It is still unseen by my model. मेरे मॉडल ने नहीं देखा है, तो उसके लिए this is as good as future data, right? Correct. Very fine. हाँ जी, कैसे करेंगे प्रेडिक्शन? ये रहा मेरा फाइनल मॉडल और ये रहे उनके कोएफिशिएंट्स. रिमेंबर बीटा नॉट, और अब बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, या हाँ मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स. तो
बीटा वन बीटा टू बोलो या m1 m2 m3 बोलो, for each variable I have slope, respective slope of that variable, and finally the intercept. All seem to be important. कैसे लिखेंगे ये इक्वेशन? This one into value of table plus this one into value of this, right? वही इक्वेशन है. So we don't have to do it manually, thankfully. R provides a built-in function for that. Yeah, sigh of relief. So what I am doing is, validation में I am initiating a new column, pred price. Right? The function is predict and syntax is predict. I tell किस मॉडल से prediction करना है and what is the new data here in the chat box. Get the logic? I want a new column pred price in validation. यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी? वही जो लीनियर इक्वेशन देने वाला है इसका. अगर मैं लिखने लगूँ इसको कोएफिशिएंट के फॉर्म में, बीटा वन इंटू वेरिएबल वन प्लस बीटा टू इंटू वेरिएबल टू एंड सो ऑन एंड फाइनली प्लस इंटरसेप्ट सी कांस्टेंट और बीटा नॉट, तो वही कर रहा है प्रेडिक्ट फंक्शन. इट विल टेक दिस मॉडल मीन्स दिस इक्वेशन whatsoever it has given, and I am saying this time the new data is bad and fire. So let's see what happens in validation dataset. Validation dataset में वही हो गया है जो हम सोच रहे थे. You see that these are the predictions of my model, और एक्चुअल प्राइस क्या था वो भी मेरे को पता है. फॉर ईच डायमंड एक्चुअल इतना, मेरा प्रेडिक्शन इतना, एक्चुअल इतना, मेरा प्रेडिक्शन इतना, एक्चुअल इतना, मेरा प्रेडिक्शन इतना. For each variable, for each diamond, we have done this. We have done the job. Sorted. मेरे को बस कंपेयर करना है. Now we have to compare कि मेरे मॉडल के प्रेडिक्शन और एक्चुअल प्राइस में, एक्चुअल प्राइस और मेरे प्रेडिक्शन में कितना कितना डिफरेंस आया. ठीक है जी, बढ़िया, पता लग जाएगा. प्रेडिक्शन तो आ गया, एक्चुअल पहले से पता है, कंपैरिजन रह गया. अरे ठीक है. नाउ कैसे करेंगे कंपेयर? There are several ways to compare these type of continuous variables. Actual values चल रही हैं. There are some actual set of values, a1, a2, a3. Then there are predictions, और मेरे को देखना है error कितना आया है इनमें. Predictions are p1, p2, p3. So there are some standards which are called like, which go like this. Sometimes you will see MSC. What is that? Mean square error. ठीक है. मीन स्क्वायर एरर का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूले में लिखने लगूं तो कैसे लिखूंगा? हाँ, एरर कितना किया है मेरे मॉडल ने? भाई एक्चुअल से जो डिफरेंस हुआ उसका, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्शन, यही तो एरर हो गया. दिस डिफरेंस इज द एरर. अच्छा, प्रेडिक्शन कभी एक्चुअल से ज्यादा हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, तो हमने कहा स्क्वायर कर लो. स्क्वायर, वही टीएसएस वाली प्रॉब्लम.
जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट होंगे उतनी ज़्यादा ये स्क्वायर एरर बढ़ती हुई दिखी जाएगी। तो हमसे किसी ने कहा भाई ऐसा अन्याय मत करो, मीन ले लो। वो हो गया एमएससी। ठीक है जी। तो पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यूज में कितना स्क्वायर डिफरेंस था। Sounds good? There is something called RMSE. Now these are all different versions of the one and the same thing. अभी देखते जाना, कई जगह आपको एमएससी मिलेगा, कहीं आरएमएससी मिल जाएगा, घबराना नहीं है। आरएमएससी मीन्स रूट ऑफ एमएससी, नथिंग एल्स। कोई साइंस नहीं की इन्होंने, कोई दिमाग नहीं लगाया। क्या कह रहे हैं, सिंस आपने स्क्वायर कर दिया था तो ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा एलिवेटेड दिख सकती हैं, तो क्या कर लो, कुछ भी मत कर लो, स्क्वायर रूट ले लो इसी का। ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो वो रूट मीन स्क्वायर एरर हो गया। अगेन मोर और लेस एक ही चीज़ दे रहे हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये भी सुना होगा शायद आप लोगों ने, स्टैट्स में जो लोग होंगे उन्होंने ज़रूर सुना होगा, मेप। क्या कह रहा है ये, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ये कह रहा है। बात घूम घाम के अब भी मोर और लेस वैसी सी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है स्क्वायर स्क्वायर मत करो। हाँ पहले क्या, क्यों इतनी कलाकारी कर रहे हो, कब कभी स्क्वायर कर रहे हो फिर स्क्वायर रूट ले रहे हो। ये कह रहा है सीधे सीधे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो ना, ये डिफरेंस जो भी आ गया साइन इग्नोर कर दो इसका, खत्म हो गई बात। ठीक है, ठीक है जी। साइन इग्नोर कर दो, साइन इग्नोर कैसे कर दोगे, अच्छा सिंस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम कह रहे हैं मीन नहीं ले रहे, हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं इसको, एक्चुअल वैल्यूज जो भी थी उनका टोटल ले लो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, कितने परसेंट हो जाएगा ये। आप समझ पा रहे हो ये सारी चीजें, कमाल कुछ नहीं हो रहा है, सब मोरलेस घूम घाम के एक ही बात हो रही है। दीज आर डिफरेंट फिगर्स, different formulas to measure the one and the same thing. कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन आपको इसमें, अगर आप लोगों को नहीं है तो फिर मैं मुझे है, मैं बोलूँगा।
नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। ओके, चलो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है तो मैं बताता हूँ मेरे को क्या प्रॉब्लम है इनसे। आओ एमएससी कैलकुलेट करते हैं। हमने जो अभी मॉडल निकाला है एमएससी कैलकुलेट करते हैं इसके। हाँ जी, क्या कहता था एमएससी? वैलिडेशन डॉलर एक्चुअल, वो तो प्राइस कॉलम है। माइनस कर दो वैलिडेशन डॉलर फ्रेड प्राइस। इनमें माइनस करने में ये ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पहले कौन सा बाद में कौन सा, एनीवे स्क्वायर करना है तो फर्क नहीं पड़ता। इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो सारी एरर्स का स्क्वायर हो गया, ये आ रहा। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कितना, किसी का कितना। फिर कहता है इनका मीन ले लो। मीन कैसे लोगे? डिवाइडेड बाय, हाँ, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, नंबर ऑफ रोज ऑफ वैलिडेशन डेटा, मीन आ जाएगा। सही बात है, यही तो कह रहे थे। एरर निकाला, स्क्वायर कर लिया, एवरेज ले लिया, आ गई एमएससी। कितनी आई है? अच्छा, एरर का टोटल तो किया ही नहीं। यार छोड़ो, एक डायरेक्ट दिखा, ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना। देयर इज अ पैकेज कॉल्ड फोरकास्ट। ठीक है, एंड इट हैज अ फंक्शन कॉल्ड एक्यूरेसी। इवेंचुअली ये सारी एरर हम देख के एक्यूरेसी देखना चाह रहे हैं अपने मॉडल की। दैट्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? एक्यूरेसी बिटवीन वैलिडेशन प्राइस अगेंस्ट वैलिडेशन डॉलर प्रेडिक्शन। एक्चुअल अगेंस्ट प्रेडिक्शन हम देखना चाह रहे हैं, व्हाट इज द एक्यूरेसी, एंड इट गिव यू डायरेक्टली वही सारी चीज जो हम बात कर रहे थे। मीन एरर, आरएमएससी, मेप, जिनकी भी बात करते हुए आ रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यू विल सी दीज टू थिंग्स, मेप एंड आरएमएससी। ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा जो भी आपको ये डेटा दे रहे हैं, वो बताएंगे व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग योर मॉडल्स एक्यूरेसी। जब आप फ्यूचर में हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे और मे बी व्हेन यू विल डिलीवर सम प्रोजेक्ट्स, तो दिस विल बी गिवन दैट व्हिच स्टैंडर्ड विल बी कंसीडर्ड आरएमएससी। यानी ये सारे के सारे एरर हैं। एरर हैं यानी मैं क्या चाहता हूँ, ये जितने कम हो उतना अच्छा है। आई होप, आई होप इट इज करेक्ट, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ये सारे एरर्स हैं इवेंचुअली, दीज आर एरर्स डन बाय माय मॉडल। What I will want is that these should be as minimum as possible. Mean error नहीं लेंगे because positive negative sign you have not taken care of. Mean absolute error आप नहीं लेंगे because it doesn't take into account number of data points. ठीक है, mean percentage error, okay, again sign is not taken care of. तो दो ही चीज बची हैं, RMSE, इसका स्क्वायर कर लोगे तो MSE भी मिल जाएगा।
MAP, you know what is MAP. ठीक है, settled, everybody good with this forest package का accuracy function here in the chat box. Coming back to the question, one question, okay, Shubham is asking, I'm just extending his question. तुमने कहा एक मॉडल बनाओ, अच्छी बात है, मॉडल का स्टैंडर्ड रहेगा RMSE, चलो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने वैलिडेशन, मैंने मॉडल बनाया, बहुत अच्छा मॉडल बनाया, आर स्क्वाड देखी थी, आ रही थी, प्रेडिक्शन देख लिया, प्रेडिक्शन को कंपेयर कर लिया, RMSE आ गई 1000 समथिंग समथिंग, क्या समझूं अभी सर, ये मॉडल अच्छा है खराब है? हम्म, कैसे बताओगे कि मेरा प्रेडिक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? इसके बेसिस पे, इस प्रेडिक्शन के बेसिस पे इस मॉडल की बात मान लूं कि नहीं मान लूं, बिजनेस डिसीजन लेने लगूं कि नहीं लेने लगूं, should I put this model into production or should I tweak it further, should I see that what else can be done? All in all, the question is, even if I calculate RMSE, even if I calculate MAP, I am clueless about where this validation has gone, in which direction it has gone. Are these parameters telling my model is good to go? Or should I try something else? क्वेश्चन समझा, प्रॉब्लम समझा मेरा क्या है? सारी कहानी करने के बाद मैं वैलिडेशन कर ही नहीं पाया हूँ अभी, क्या बोलूँ इसे, मॉडल वैलिड है, इनवैलिड है? So these are all parameters and these are widely used in industry, but even then these are, leave you blank many a times. Like in such scenario, when you don't have anything to compare with. Actually these are, अगर मेरे पास दो मॉडल होते, इसकी इतनी आई है, उसकी इतनी आई है, तो मैं देख लेता कि किसकी कितनी आई, तो मैं ये बोलूँ कि ये बेटर है, वो ठीक नहीं। What can be the other thumb rule is, देख रखा है वैसे तुमने? The core function. हाँ हाँ वसुंधरा, वही वही कह रहा हूँ, समझो ना। मैंने एक मॉडल बनाया, अपनी समझ में अच्छा ही बनाया था मैंने। आई हैव टेकन केयर ऑफ VIF, आई हैव टेकन केयर ऑफ आउटलायर्स एंड अदर anomalies and everything and what not and blah blah blah, everything is said and done. Now I am validating and against actual price my model has predicted something which is giving me root mean square error of this much. क्या बोलूँ अब मैं, ये मॉडल अच्छा है, खराब है, नहीं है, चलूँ आगे या कुछ और करूँ? अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या तो मैं कोई और मॉडल बना के देखूँ, दोबारा जाऊँ और फिर कुछ मॉडल वेरिएबल्स अल्ट पलट के दोबारा बनाऊँ, देखेंगे RMS पे क्या फ़र्क पड़ा है फाइनली, तो समझूँगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। लेकिन इन दोनों में से भी जो बेटर है, वो भी सैटिस्फैक्टरीली बेटर है कि नहीं है? समझ पा रहा प्रॉब्लम? पा रही है, सॉरी। यस, लेसर द RMSE, द बेटर, एग्रीड, बट हाउ लेसर इज लेसर? कितने को कट ऑफ मान लूँ कि इससे कम RMSE आ जाए तो मैं मान जाऊँगा? I don't have any parameter with that. Any parameter to set the bar. Remember core function? Correlation बताता था कि दो वेरिएबल में कितना अच्छा कोरिलेशन है।
ये भी बढ़ता बढ़ता जाए तो ये भी बढ़ता बढ़ता जाए। स्पोर्ट्समैन की हाइट बढ़ती जा रही है तो वेट भी बढ़ता जा रहा है। सीजन में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी बढ़ती जाए। एंड इट वेरीज बिटवीन -1 to 1। ये भी हमने देखा था। हाँ, तो वही कह रहा हूँ। अगर मैं प्राइस कॉलम को सॉर्ट कर लूँ, स्मॉल टू लार्जेस्ट, वैलिडेशन को भी सॉर्ट कर लूँ स्मॉल टू लार्जेस्ट, अगर मेरे मॉडल ने प्रेडिक्शन अच्छे दिए हैं, कुल मिला के बात यह है कि अगर मेरे मॉडल के प्रेडिक्शन अच्छे हैं तो इनका कोरिलेशन अच्छा निकलने वाला है। साउंड्स सीम्स लाइक दैट। नहीं क्या? आइए देखते हैं, अब यही बताएगा। And how much it is telling you? It is telling it is 0.95. Very good very good correlation। और ये होता क्या है मालूम है? ये क्या होता है? जो आपने आर स्क्वायर्ड निकाला था ना, आर स्क्वायर्ड, और हम जानते हैं उसकी रेंज क्या होती है, बिटवीन 0 and 1। जितना 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा फिट हुआ है, और इसको हम कहते हैं आर स्क्वायर्ड। पता है आर स्क्वायर्ड क्यों कहते हैं इसको? अगर इसको आर स्क्वायर्ड कहते हैं तो आर कौन होता है? आर यही होता है, कोरिलेशन। इसीलिए इसीलिए आर स्क्वायर्ड 0 to 1 वेरी करता है। इसीलिए कोरिलेशन क्या कह रहा था मैं, कि -1 to 1 वेरी करेगा। थिंक अबाउट इट, करेगा कि नहीं? इट इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू हो, उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, वो कहाँ वेरी कर सकती है? हम्म। साउंड्स लाइक pieces ऑफ पजल फॉलिंग इनटू प्लेस। सीम्स लाइक दैट। आ रहा है फील थोड़ा थोड़ा। स्टिल आई थिंक देयर आर मेनी, यू नो, आई हैव टू ग्रीस मेनी जॉइंट्स स्टिल, बट कुछ कुछ चीजें आ रही हैं जगह पे। I told you I will gel all this mathematics into one place. It will happen. जो भी आप मैथ्स करते हुए आ रहे थे, it will fall somewhere in line. ठीक है जी। तो दिस बिकम्स योर स्टैंडर्ड, यानी इसका मैं स्क्वायर देख लूं, आर स्क्वायर्ड, तो ये क्या आ गई? ये मेरे प्रेडिक्शंस की आर स्क्वायर्ड आ गई। मेरे मॉडल की आर स्क्वायर्ड कितनी थी? I am calling it RSQ, and it is a square of correlation of actual and actual versus predictions। मेरे मॉडल की आर स्क्वायर्ड कितनी थी? कहाँ देखी थी हमने? ये थी। This is my model's R squared was 0.919, and this RSQ, this prediction RSQ is how much? कितनी आई थी ये? Okay, model RSQ was 919 and prediction हमने कैसा दिया है? 918,
ऑलमोस्ट एट पार। तो नाउ वी कैन से वेरी सेफली मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया, देखने में आर स्क्वाड बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये प्रेडिक्शन एक्चुअल डेटा पे कैसे देगा जब अनसीन डेटा आएगा इसके पास। तो हमने अनसीन डेटा इसको दे करके देखा, विच वॉज वैलिडेशन एसेंशियली। उस पर उसने जो प्रेडिक्शन दिए हैं, एंड वी सी दे आर वेरी मच क्लोज विद एक्चुअल प्राइसेस। तो नाउ आई कैन सेफली से दिस मॉडल कैन बी पुट इनटू प्रोडक्शन। अच्छा लग रहा है रिजल्ट इसका। कहाँ से कहाँ तक भेजूँ मैं आप लोगों को? प्रेडिक्शन से लेकर के लास्ट तक भेज दे रहा हूँ। ओके, देर आर टू प्लॉट्स ऑल्सो। अपने आप बना करके देखो, मैं नहीं दिखाना चाहता। Here it is in the chat box. Oh my god, I perhaps pasted 2 times. Just copy paste and check these plot and lines and tell me what do you think. कुछ नहीं कर रहा, वही कर रहा हूँ, एक तरह से विजुअली कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्शन को। Tell me if any confusion, any problem. ओके, वेरी फाइन। जिन लोगों का रन हो गया है, तो यू हैव द कोड, यू हैव वन एक्सरसाइज फॉर एंड टू एंड रनिंग linear regression. What I will want you people to do is now you get back to your groups, discuss among yourself, and you have that car price data set. You have that, right? So, okay, so you have already decided your group, team up, and you will submit this one before Monday lecture, and you will conduct it properly. Your code should have proper body, proper commented, well commented code. One per group, not individually. Everybody individually don't need to submit it like that. What is that? I am expecting is one submission per group. Your code should have a proper structure, a well commented file. You have read the data and you are cleaning it, where you are doing what. Properly stages of CRISP-TM, how you try to understand data, what do you know, get to know about this data dictionary thing. How did you go ahead with univariate and bivariate analysis? Some visualizations, that will be great. Finally, you build the model. You optimize the model, and final step, you validate it. Within validation, what may or may not happen is, tell me one thing, what you can assume. Okay, ठीक है. हाँ, yes, Utkarsh, even I think so. Perhaps it has been that yeah, maybe you can try reinstall or say I'm not software expert, I'm analytics expert. And yeah, honestly speaking, by heart, I'm still mechanical. So when nothing works, I do the hammer thing. Uninstall, reinstall. And trust me, it works out. Almost every time it works out. It gives result.
Okay, I was coming on to I wanted to make another point before I leave, because you will start working right after this, not right after. Well, I mean, whenever you wish, you have ample time. Uh, Suppose you have model, you see the R squared comes out to be 0.85. What do you say? You built a model, R squared is 0.85. That's okay, pretty much close to 1. So yeah, seems like fantastic. Seems like a very good model. However, when you validate and you check R squared of your prediction against actual and validation RS cube to find out it is what has happened. What does it seem like? Yes, no, maybe. Not getting any idea. Yes, in that sense, it becomes a case of what do we call it? It means this is something indicator of overfitting. ट्रेन डेटा पे आपका मॉडल ओवरफिट हो गया है. इट इज वेरी मच हैबिचुअल टू ट्रेन डेटा सेट. ट्रेन डेटा सेट के हिसाब से उसने फिट कर लिया है अपने आप को एंड आर स्क्वायर्ड अच्छी दिखा रहा है. इट इज शोइंग दैट इट इज अ वेल फिट मॉडल ऑन ट्रेन डेटा सेट. ओके, so train data, as far as train data set goes, it is okay. As soon as you provide it the validation data which is unseen, जो इसने देखा नहीं है अभी तक, it is like analogy if I said, tell you like driving school. You are learning driving in a very controlled environment, right, with the instructor in a specially designed vehicle, and you are doing fantastic there. You are doing 0.85. Then it happens that when you come on road in Delhi, whoa, or even Bangalore for that matter. Yes, I have known Bangalore is equally notorious when it comes to traffic. Right. So this is kind of a case of overfitting. Your model is very fit, very much fit for training data, but as soon as it is out, as soon as we try out this model with an unforeseen data and unforeseen circumstances, it begins to fluke. It begins to flunk. Okay. Case two.
What do you say this time? Yeah, please say something. Whatever comes to you. Yes. What do you find out that okay, train data पे इस model का result. Okay, fantastic. When we provide this model unforeseen data which it has not seen ever, it is giving okay very decent result on that also. So these kind of models are called, what do we call them? These are optimum models or well fit models, right? It has trained well on the trained data, it is well fit on trained data, and when we give it unforeseen data, it is giving reasonably good results. So this is, these kind of models are very good models. These models can go to production. Scenario 3. Or maybe, what do you say to this? Bad model और कुछ? मतलब बैड मॉडल तो कह रहे हो लेकिन अरे समझो ना बात को, ये बैड मॉडल कोई, दिस इज अ बैड मॉडल, दिस इज नॉट अ बैड किड जिसका तुम स्कूल से नाम कटा दोगे। तुमने तो बनाया है, करोगे क्या अब इसका? एनीवन, एनीवन, एनीवन? संकल्प, मे बी, विष्णु, समथिंग? And Shivank, now I have to, I have started to worry. I don't know what is going on at your end. Yeah, I have to check list to look out for you that whether you are here or not. Even then, I am not very sure because you don't respond. Yes, kind of. This is indicating something. What does this indicate? It is indicating two things. Either data is not, or it is not. Fill in the blanks करेगा कोई? है कोई सुडोकू एक्सपर्ट? है कोई पजल एक्सपर्ट? Woman power, maybe. Woman power is also silent today. My goodness, fantastical, awesome. Either your data is not sufficient.
फॉर एग्जाम्पल यू नो इमेजिनरी ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं लाइन फिट हो रही होगी, मैं सिर्फ 2D में दिखा सकता हूँ. Had it been you have many data points like this, 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 तो तुम्हारी लाइन फिट हो गई होती, राइट? और हम TSS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कर लेते, RSS एंड देन डिवाइडेड बाय TSS एंड 1 माइनस एंड सब करके आर स्क्वायर निकाल लेते, तो एक अच्छी सी आर स्क्वायर आ रही होती. पता लगा आपके पास डेटा ही इतना है, योर डेटा पॉइंट्स आर ओनली दिस, दिस एंड दिस. बताओ कौन सी लाइन बेस्ट फिट करेगी? कोई से भी करा लो, आर स्क्वायर खराब ही आने वाली है. सही बात है, डेटा पॉइंट्स ही बहुत कम है. ये रहे 4 डेटा पॉइंट. Okay, let's come to the second blank. Okay. Uh, Accurate. In what sense accurate, Vasundhara? I can sense you are close. Correlated. Okay. Okay, very well. I got the gist. I got the gist where you and Prasun and Vasundhara are going with this. I'm just putting in the word. Tell me if you agree. Make sense? Yes, Prasun. And yes, Vasundhara, I know. I know. I can sense that. What was on your mind? Yeah, you were just lacking the exact word. It is very bad thing when it happens in interviews. You know the concept and you are you are not getting the right words to put it on the table, and then you tell interview like that. Close, close, smiley. Relevant in the sense, जिनको नहीं समझा अभी तक बता दे रहा हूँ. Relevant in the sense, remember that newspaper budget versus sales data. सेल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए आपके पास डेटा तो बहुत सारा है, बट इट इज नॉट रेलेवेंट. वो सेल्स का रेलेवेंट डेटा ही नहीं था. कर लो ना फिट, जहां भी फिट करोगे आर स्क्वायर खराब ही देगा. कर लो, चाहे ऐसे कर लो फिट, चाहे ऐसे कर लो फिट, जहां से मर्जी कर लो, आर स्क्वायर खराब ही देगा जो भी फिट हो. तो यू डोंट हैव एक्चुअली रेलेवेंट डेटा विच कैन प्रेडिक्ट सेल्स. उसके रेलेवेंट डेटा ही नहीं है. ठीक है. अब पता दिक्कत क्या होगी? वैलिडेट करके क्या बिगाड़ लोगे ऐसे मॉडल से? जो मॉडल फिट ही नहीं हुआ अच्छे से, समझ पा रहे हो? वैलिडेशन में क्या करोगे उसका? जैसा वो फिट हुआ है उसी के आसपास मोर और लेस, मे बी 0.53, मे बी 0.57, बस इतनी जा जाएगी वैलिडेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा. और क्या होगा? दीज आर कॉल्ड, हाँ जी, क्या कहते हैं इनको? दिस इज अगेन अ डेंजरस ब्रीड, नॉट गुड टू हैव. दीज आर कॉल्ड अंडरफिटेड मॉडल्स, जो फिट ही नहीं हुए हैं पहले ठीक से. पहले फिट होंगे तो प्रेडिक्शन देंगे.
ठीक है जी, very fine. I have taken almost 5 days to go into each aspect of regression analysis, and I hope it was worth it. I don't know what you think about it, but that was really my intention. I did not want to waste time, but I wanted to touch each and every aspect of analysis, predictive modeling before we jump into further complex models. So in the very first model, I wanted you to get a fair idea about how a predictive analytics project runs. अगर ये सब सेटल है तो इसके बाद काम आसान हो जाता है. You will just have to change the algorithm and change the model and maybe change the syntax of your code, and bingo, you can try multiple models, this model, that model, that model. Try as many models as you want. You just have to keep certain things in mind which you know already. ये fundamentals, they go throughout for every algorithm, and for that matter for every tool, be it R, be it Python, be it anything. ठीक है जी, so it's time. I'm turning off recording, but I'll stay for a couple of minutes if there is any question. Love to take it.